Good morning, students. Beta, today the topic of our discussion is types of sentences. Right? So, first of all, we learn what is a sentence. इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਾਂ ਵਾਕ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਾਂ ਵਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿਸ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ So, sentences are of 5 types. First is assertive, or you can say declarative or statement. So, these are the different words that can be used for simple sentence, right? So, assertive or simple sentence. इसको तुसी simple sentence भी कह सकते हो. So, in a simple sentence, there is a subject or then there is a verb and there is an object. So this is the structure of a simple sentence. A simple sentence ਦਾ structure है कि जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ subject ਹੋਵੇਗਾ subject मतलब doer जिसने कोई काम करना है so this person may be a noun or a pronoun ठीक है जी इस तो बाद है verb क्रिया और अखीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ठीक है जी this is your simple sentence for example Ram writes a letter this is a simple sentence Ram पत्र लिखता है राम सब्जेक्ट हो गया राइट्स वर्ब हो गया और राम काम करता है केड़ा काम करता है की कर रहा है की लिख रहा है राइट्स ने नहीं लिखना वो लिखता है की लिखता है अ लेटर दिस इज योर ऑब्जेक्ट सो इन अ simple sentence there are 3 parts subject verb and object right then the next part next type of sentence we have interrogative बेटे interrogative ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ question form sentence भी कह सकते हो you can put it like this question form in a very simple way you can say the sentence that ends with the question mark मतलब कोई भी सेंटेंस ਜਿਹੜਾ कि क्वेश्चन मार्क ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ that sentence is called interrogative sentence ठीक है तो ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਹੈ interrogative ਦੀ कि there is a sign of interrogation या question mark there is a sign of question mark there is a sign of interrogation लिख लो interrogation और sign of interrogation की है एवे कच्ची उल्टी ते तिरनी या इनू ਆਪਾਂ कह सकते हाँ question mark जिस दे विच प्रश्न पूछा हुण जे ਆਪਾਂ इंटरोगेशन की गल करते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंस की गल करांगे ते ਆਪਾਂ एग्जांपल के तौर पे इतने की लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है कि व्हाट इज योर नेम व्हाट इज योर नेम ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इट मीन्स दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज योर इंटरोगेटिव सेंटेंस देन नंबर 3 इज imperative in
simple sentence, or sorry, in simple words you can put it like this कि in imperative sentences there is no subject। देखो बहुत ही सीधी जी गल है, जिन्ने भी imperative sentence ने उन्हां दे विच कोई भी subject नहीं हुंदा, ठीक है जी। ਇਹਦੀ पहचान ही सेंटेंस की है कि इस दे विच कोई भी सब्जेक्ट नहीं होएगा। इस दे विच की होएगा, इस दे विच सेंटेंस जिहड़ा स्ट्रक्चर है वो है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ द सब्जेक्ट इज मिसिंग इन दैट इज योर इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस भी अगे की तरह हो सकते हैं, एक रिक्वेस्ट होता है जी, एक ऑर्डर है, एक एडवाइस, ठीक है। मतलब इंपैरेटिव सेंटेंस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਨ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड योर इंपैरेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। इसी तरह जिस सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਅ ਨॉइस, शोर नहीं करना, ठीक है, उत्थे ऑर्डर दे रहे हैं। कोई बॉस है किसी अपने इंप्लॉई नू कोई ऑर्डर दे रहा है गो एंड डू दिस, उत्थे भी इंपैरेटिव सेंटेंस है। आपां किसी नू एडवाइस कर रहे हैं, आपां किसी नू सलाह दे रहे हैं कि डोंट डू दिस, ठीक है। आपां कोई टीचर है वो बच्चों को सलाह दे रहा है कि यू शुड डू योर होमवर्क डेली, तो अपना काम हर रोज़ करना चाहिए, वो तो एक सिंपल सेंटेंस बन गया। लेकिन जे टीचर बच्चों को कह रहा है कि डोंट डू दिस, ये ना करो, ठीक है, सेंटेंस का देखो फर्क है। जे टीचर ने कहा है कि यू शुड डू योर होमवर्क डेली, उत्ते यू लग्या हुआ है, उत्ते सब्जेक्ट लग्या हुआ है, इस करके वो सिंपल सेंटेंस है। लेकिन जे सब्जेक्ट नहीं दिता हुआ और टीचर बच्चों को कह रहा है कि डोंट डू दिस, ये काम नहीं करना, ठीक है, नैवर टेल अ लाई, कदे झूठ ना बोलो, इस तरह के सेंटेंसिस दे विच जिथे सब्जेक्ट नहीं है उत्थे की है वो सेंटेंस तुहाडा इंपैरेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। सो टेक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट का है, रिक्वेस्ट जिहड़े सेंटेंसिस ने रिक्वेस्ट या मतलब जिन्हें भी रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसिस ने काइंडली अपनी शब्दां जोड़ोगे, काइंडली bring me a glass of water, कृपा करके मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। इसी तरह जो आप ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, फिर आप कह सकते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये किसी को ऑर्डर दे। इसी तरह जो आप एडवाइस कर रहे हैं किसी को, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, आप किसी को समझ रहे हैं कि अपना समा बर्बाद ना। इस तरह इंपैरेटिव सेंटेंसेस जिहड़े ने वो 3 तरह के हो गए जी। रिक्वेस्ट जिथे काइंडली आप प्लीज लिखे होगे, ऑर्डर जिथे आप किसी को कह कर वो कर ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है जी। एडवाइस जिथे सलाह दे रहे हैं कि एक काम नहीं करना या इस तरह करो, वो एक मतलब इतने देखो 3 सेंटेंसेस दे विच एक चीज़ कॉमन है कि देयर इज नो सब्जेक्ट, ठीक है। इफ अ सेंटेंस डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड इंपैरेटिव सेंटेंस, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ इज exclamatory sentence. Any sentence that carries a sign of exclamation, किसी भी सेंटेंस के विच जिथे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन गिवन है इस तरह का, ये साइन है साइन ऑफ बेटा एक्सक्लेमेशन। जे इस तरह का साइन दिता हुआ है, इट मीन्स कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। इन सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस सडन फीलिंग्स आर शो, मतलब इस तरह के सेंटेंसेस दे विच एकदम मतलब किसी चीज़ को देख के आपां नूं एकदम किहड़ी फीलिंग आई है वो दसी गई होंदी है। जिवें मान लो कोई तुहानूं एक न्यूज़ मिली है, बहुत खुशी की खबर है, उन्होंने देख के अपने मुँहों निकल जाता है वाओ, ठीक है, या हुर्रे,
ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਹੂਰੇ ਵੀ ਹੈਵ ਵੌਨ ਦ ਮੈਚ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਹੁਰਾ ਦੋਨੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਵॉट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कितना वधिया एक सरप्राइज है, हैरान कर देने वाला ये नज़ारा है। इस तरह आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ਦੇ ਵਿੱਚ हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ਜਿਹੜਾ है वो ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं अल्लाह आई एम हाय मैं तो बर्बाद हो गया। ये सेंटेंस ਜਿਹੜਾ है इतने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज गिवन, इट मीन्स दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। इतने भी लगे हो सकता है, इतने भी लगे हो सकता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। एंड द लास्ट टाइप इज ऑप्टेटिव। हाँ जी बेटा, ऑप्टेटिव किस तरह के सेंटेंसेस है जिथे मे लगे होता है, आप किसी को कहने मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, ठीक है, या मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, जिथे आप किसी के लिए विश मंग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसिस ने जिन्होंने मे लिखा होवे उन्होंने ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो आप सीधा एग्जाम्पल लिखांगे है मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ। एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस तरह के सेंटेंसेस के विच नहीं होएगा, इस तरह वाले अच होएगा। उत्थे डोंट गेट कंफ्यूज नहीं होना तुसी, क्योंकि फ़र्क की है कि ये वाले ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो है दे ऑलवेज बिगिन विद द वर्ड मे। मे के नाल जब स्टार्ट हो रहे हैं तो इस करके आपां इन्हों ऑप्टेटिव सेंटेंस कहांगे, ठीक है जी। और जिथे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। So these are the different types of sentences. I hope this topic will be clear to you. So let's have a glance at all the types of sentences again. एक बार दोबारा ही आप देख लेंगे सारे sentences के types, ठीक है, थोड़ी सी पहचान हो जाएगी। सब तो पहला है सिंपल, assertive और declarative कह सकते हो। सेकंड है interrogative, ठीक है जी। Third is imperative, fourth is exclamatory, fifth is optative। सो इन्हों की अलग अलग पहचान की है। सिंपल के विच आपां की करना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस के विच की है इतने कोई भी एक्सक्लेमेशन, बस यही पहचान तुसीं यही रखनी है साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस सेंटेंस के विच फुल स्टॉप होएगा, इतने क्वेश्चन मार्क होएगा। इंपैरेटिव सेंटेंस के विच नो सब्जेक्ट, देयर इज नो सब्जेक्ट, and such kind of sentences they begin with the verb तो क्रिया तो शुरू होंगे ने सब्जेक्ट नहीं होता इन्हों के, और पीछे इन्हों के सेंटेंस खत्म होने तो बाद भी फुल स्टॉप आएगा। इस भी फुल स्टॉप होएगा, तो सिंपल के भी फुल स्टॉप आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क होगा, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान की होती है देयर इज अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन साइन होगा, इसकी पहचान है। और ऑप्टेटिव की पहचान की है begins, such kind of sentences begins with may। may शब्द के नाल ये सेंटेंस शुरू होगा। So these are the different types of sentences, and I hope this topic will be clear to you. Thank you so much.